ଏବେ ଆସ SSVP ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଧର ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଜାଗା ସେଟା, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ତମାନେ ଏଠି ଆସିକି ରୁହ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଘର କରିଦଉଛୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେର ମିଶିଯିବେ କି ନାହିଁ? ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଫେର ସେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ଆସି ଫେର ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ବନିଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଗଲା, ଉଠାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଲଟ୍ ଅଫ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେଠି ଯାଇକି ସେଠିକା ଲୋକାଲ MLA, ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଦେବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏଠି ତମ ପାଇଁ ଘର ହେଇଛି। କ୍ଲିୟର ହେଲ? ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇପ ର, ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ପ୍ରୋସେସ ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ଆମକୁ, ଏବଂ ଏଟା ଯଦି ଟିକେ ଛାଡିଦବା ଫେର ସେମାନେ ମିଶିଯିବେ, ବା ଏଠି କଏଲିଂ ଫଏଲିଂ ହେଇଯିବ, ଭିଡ କରିବେ, ତ ତାକୁ ଆମକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆଉ ଥରେ ମିଶେଇବାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଟିନ SSVP ସମସ୍ତେ ଲେଖ। It prevents reannealing. Binds to single stranded DNA and prevents reannealing. ତେଣୁ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲେଟ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲେଟ ଟା ମେଣ୍ଟେନ ହବ, ନହେଲେ ସେ ଫେର ମିଶିଯିବେ ନା। ଆନିଲିଂ ମାନେ ମିଶିଯିବେ, ଫେରେ ରିନାଚୁରେସନ ବି ତାକୁ କହନ୍ତି। ହେଲା, ଯୋଉଠୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ସେଇଠି ଫେର ମିଶିଗଲେ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଲେଖ। It prevents reannealing, thus provides single strand DNA templates। ହେଲା, DNA templates। ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ DNA କୁ ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଜ ଆସିକି ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଲେଖ। protects the single strand DNA from nuclease action। ହେଲା, protect the single strand DNA from nuclease activity। এই ଦିଟା ଲେଖ କେବଳ, ତମେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖ ନା। SSVP ତମ ବହିରେ ନଥାଇପାରେ, but you write these 2 points। ଦେଖିଲ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲ ଏଇ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟସ୍। prevents reannealing, ହେଲା, prevents reannealing। ହେଲା, ପ୍ରେମଜିତ ହେଲା ନା। and second ଆଉ କଣ କହିଲେ ନା, protect single strand DNA from nuclease। nuclease ମାନେ କଣ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ କୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗେ। ସେଲୁଲୋଜ ମାନେ କଣ? ଯେ ସେଲୁଲୋଜ କୁ ଭାଙ୍ଗେ, ତାକୁ ସିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ହେଲା, ମୁଁ ବେଶୀ ଲିଖିନି, only 2 ଲାଇନ୍। ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିପାରିବି, but I am just writing only 2 ଲାଇନ୍। ଆମର DNA replication is over, central dogma is over, DNA RNA difference is over, RNA world is over। ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଆମେ ସାରି ଦେଇଛେ। DNA replication semiconservative ବି ଆମେ ସାରି ଦେଇଛେ। ଲିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଲାଗିଂ ର ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଆମେ ପଢେଇଛେ। DNA replication is from 5 prime to 3 prime ନା 3 prime ରୁ 5 prime, ସେଟା ବି ପଢେଇଛେ। ଗ୍ରୋଥ କେମିତି ହବ ପଢେଇଛେ। ଓକାଜାକି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟସ ପଢେଇଛେ। ଓରି ପଢେଇଛେ। ଓରି ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ DNA replication। ହେଲା, ତା ସହିତ ଆମେ ହିଷ୍ଟୋନ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରେଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଆମେ ଯିବା ହେଲିକେଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ନା ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ? ହେଲିକେଜ। DNA ଟା ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ, ତାକୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଏମିତି ଅଲଗା କରିବେ କି ନାହିଁ? ସେ ଦିଟା ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଲାଗିଛି ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା। ହେଲା, ଦି ସେପାରେଟ DNA ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖ। ହେଲା, ସେପାରେଟ ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ DNA ଟୁ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖ ନା, ଯେତିକି ଲେଖା ହଉଛି ସେତିକି ଲେଖ। ହେଲା, ଏତିକି ଲେଖ। by dissolving hydrogen bonds। এইটা ଖାଲି ଲେଖ। and ଏଥିପାଇଁ ଏନର୍ଜି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏଟା ATP ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖ, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖ। ଏଟା ATP ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସେମିତି ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ରେ 9ଟା ହେଲିକେଜ ଅଛି। ହେଲା, ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲା, ଏଟା କିଛି ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ ଏଟା ତମର ଟିକେ ହାୟର ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦିଟା ଲେଖ ଖାଲି।
separate double stranded DNA into single strand DNA by dissolving the hydrogen bonds. धर मु कहबी जे ocadic fragments are united by ligase. तो ligase कौन करूची फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनौची. पॉलीमरेज कौन करूची फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनौची. हेलिकेज कौन करूची हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करूची. and it is ATP dependent. ए दिटा पॉइंट हैला पिला माने ए दिटा पॉइंट्स लिखिलो. एलिना लिप्सा श्रुति डन. ओके ओके ओके. एबे आस प्राइमेज. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमेज? कहले देखिया प्राइमेज कौन ना. प्राइमेज इज ए स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज. It synthesizes a short stretch of RNA in 5 days direction on the template. ता माने प्राइमेज टा कौन गोटे DNA dependent DNA specific RNA polymerase जो कहितले ला बुझेला. It synthesizes short stretch of RNA ला 5 days to 3 days on template running 3 days to 5 days in directions ला. एटा गोटे RNA प्राइमेज कौन गोटे RNA polymerase ହେଲା. ତ RNA प्राइमर रे केतेटा थाए 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग सिंथेसाइज बाय RNA प्राइमेज. ये कौन करे प्राइमेज कौन करे RNA प्राइमर बनाए. तापरे DNA पॉलीमरेज ताको को DNA पॉलीमरेज करिवो छेडा मु बतेइबी ହେଲା. खाली कौन लिखिले प्राइमेज कौन बनाए RNA प्राइमर बनाए आ चला. we know everything. हम खाली एक्स्ट्रा गोटे एंजाइम्स रो विषय टिके टिके लिखो जे. जिबा आगु को प्राइमेज ला DNA स्पेसिफिक RNA पॉलीमरेज आको कौन कहंती कहथली DNA स्पेसिफिक RNA पॉलीमरेज कहंती बोली कहथली कि नहीं. DNA स्पेसिफिक RNA पॉलीमरेज बोली कहथली मु ला मन पड़ला. ओके अच्छा तमे जतले चेन फॉर्मेशन करूछ सतबेले Mg++ दरकार हुए कि गोटे आयन दरकार हुए कि आयन सब दरकार हुए ହେଲା. तो आमे सेटा कहबा. एबे आस DNA लाइगेज. DNA लाइगेज ऑलरेडी यू नो ହେଲା. तार काम कोन को joining the Okazaki fragments during replication. DNA repair रे भी टिके सहायता करे. Completing short patch of DNA synthesis during DNA repair process. ये दीटा पॉइंट्स कर लिख दियो. Obviously ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेइबो. पिलार बुझ पाला केना सेगमेंट गुडा को यूनाइटेड करिया पई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दरकार. एंड नीक गुडा को भी क्लोज करिया पई भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दरकार. प्रथमटा NAD+ यूज करे आज कोफैक्टर. सेकंडटा ATP यूज करे. सेटा केवल कोठी अच्छी यू हैव टू रिमेंबर हैला. बट यू राइट दीस 2 पॉइंट्स ओनली. ए दीटा पॉइंट्स खाली लिखो. डन. ओकाजाकी फ्रैग्रेंस को किए यूनाइटेड करे लाइगेज. DNA रिपेयर प्रोसेस रे बा निक को क्लोज किए करे ना लाइगेज. आगु जाउची रामजी. सब लिखिया दरकार नहीं ला. अच्छा DNA लाइगेज मेकानिज्म रे मु टिके
लिखिची the reaction occurring in 3 stages in all DNA ligase formation of a covalent enzymes सेटा टिके हेल्प करे ताको ट्रांसफर ऑफ एम न्यूक्लियोटाइड ए सब साहाय्य करे हला ता विषय आ दरकार नाही एबे गोटे पॉइंट्स मते को सुपर कॉइल्स एटा लेख जत्ते बेले सुपर कॉइलिंग बा सुपर कॉइल्स बेले गोटे हेडिंग दियो आज टू स्ट्रैंड्स अनविंड हला एटा गोटे डीएनए एटा ओपन हे चेंती तले एटा जते अनविंडिंग हबो एटी कॉइलिंग हे जो कि नै एटा गुडे गाडे हे जो कि नै जोटी से माने ओपन हेले सेट से माने कॉइलिंग ही जिवे द फॉर्मेशन ऑफ सुपर कॉइल इन द रीजन्स ऑफ डीएनए ahead of replication the accumulation of these super coils interfere with the further unwinding of DNA strands ना this problem super coiling को ठीक किए करिवो एटा लेखो the problem is solved by enzymes topoisomerases लेखो the super coiling problem was solved by enzymes topoisomerase ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଟେନସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା this tension is released by topoisomerase ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗାଇରେଜ ବି ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ହେଲା ସେ କାଟିକି ତାକୁ ଠିକ ଠାକ କରିଦବ ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଧର ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଧର ଆମେ ଉଲ ରେ ଗୋଟେ କିଛି ତିଆରି କରୁଛେ and ଉଲ ଗୁଡା ଗୁଡେ ଗାଡେ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ଠିକ କରିକି ଫେର ତାକୁ ସିଧା କରିବା ନା ତ ସେଇ ଟାଇପ ର ସେଟା ନା ବାସ୍ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବା କ୍ଲିଭେଜ ତାପରେ ରିସିଲିଂ ଏଗୁଡା ସବୁ କରିପାରିବ ହେଲା କାଟିକୁଟି ତାକୁ ଠିକ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏଟା ଆମେ ଟୋପାଇସୋମେରେଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିଛେ ଟୋପାଇସୋମେରେଜ 2 କୁ ଆମେ ଗାଇରେଜ କରିପାରିବା ଏବେ ଆସ ଆମେ ଯିବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏନଜାଇମ୍ସ ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଡିଏନଏ ପଲିମରେଜେସ ହେଲା ହେଡିଂ ଦିଅ ଡିଏନଏ ପଲିମରେଜେସ ଦେଖାଉଛି ପିଲାମାନେ तो डीएनए पॉलीमरेज गोटे नहीं डीएनए पॉलीमरेज गोटे अछि ना अनेक अछि ना धर प्रोकैरियोटिक रे तीनटा अछि यूकैरियोटिक रे अधिक अछि ना तो these are the enzymes responsible for the polymerization of deoxyribonucleoside triphosphate on a DNA template strands to form a new complementary DNA strands ହେଲା ବୁଝିଲା तो एटा पूरा लेखो These are the enzymes responsible for the polymerization of deoxyribonucleoside triphosphate on a DNA template strands to form a new complementary DNA strand. Clear hello? पूरा लेखो एमाने पॉलीमराइजेशन करंती तले एमाने कोन करिवे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेबे आ एंड ट्राइफॉस्फेट काहे कि निया जाय ना पायरोफॉस्फेट रु एनर्जी मिलिबो सबस्ट्रेट भी मिलिबो हला यस and in Ramji very good and in prokaryotic cells how many are there three types हला prokaryotic रे केतेटा अछि three types हला लेखो three types वैदेही कुछ डाउट है क्या three types and what are they polymerase 1 polymerase 2 and polymerase 3 all polymerases can synthesize a new strands of DNA and direction टा हमें आगु specified करचे 5 dash to 3 dash और template रो कौन ना 3 dash to 5 dash they also show
exonuclease activities also. It cleaves the N terminal. এটা ଆମେ କହିବା ତମେ ଆଗ ଏଇଟା ଲେଖ। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଲେଖ ହେଲା 5 dash to 3 dash direction। टेम्पलेट ର କଣ ନା 3 dash to 3 prime to 5 prime direction। ଚଲା ଏବେ ଆସ there is a comparison between prokaryotic and eukaryotic ହେଲା prokaryotic and eukaryotic ର comparison। ସମସ୍ତେ ଏଇ ବକ୍ସ ଟା ଲେଖ ବକ୍ସ ଟା ବନାଅ। ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ର 1 ୟୁକାରିଓଟିକ ର ଆଲଫା ୟୁକାରିଓଟିକ ରେ ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ଡେଲ୍ଟା ଇପସାଇଲନ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ର 1 କଣ କରେ ୟୁକାରିଓଟିକ ର ଆଲଫା କଣ କରନ୍ତି ନା ଗ୍ୟାପ ଫିଲିଂ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଲାଗିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ହେଲା। କଣ କରନ୍ତି ବୁଝି ହେଲା जो gap filling and synthesis of lagging strands ହେଲା सरला। प्रोकैरियोटिक रो 2 इप्सिलॉन भलिया काम करे ହେଲା डीएनए प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर। many books are writing अलग अलग लिख रहे हैं but you write like this। बीटा डीएनए रिपेयर बीटा कौन करे डीएनए रिपेयर। गामा माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस गामा कौन करे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस एंड रिपेयर करियो माइटोकॉन्ड्रिया रो। and prokaryotic 3 DNA polymerase 3 which is same as delta of eukaryotic leading strand synthesis कौन करे leading strand synthesis। broadly Ramji you write it properly। lagging strand 1 leading strand 3 lagging strand 1 leading strand 3 हमर प्रोकैरियोटिक मेनली अछि एंड अकॉर्डिंगली हमें कहि परिया ହେଲା बुझे लगी नहीं। lagging strand 1 leading strand 3 हेला एति त हमें कहि परिया। रिपेयर 2 रिपेयर के करे डीएनए रिपेयर के करे प्रूफ रीडिंग 2 तति तो कहि परिया 1 2 3। वेरी गुड समझते कन हेला। अच्छा मते कहलो ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहार बड़ प्रोकैरियोटिक रे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बड़ ना यूकैरियोटिक रे ओकाजाकी फ्रैगमेंट बड़ क्या एनी ऑफ यू टेल मी। गोटे क्वेश्चन मोर एठी लिखुची ओकाजाकी fragments are bigger comparatively bigger in prokaryotes or eukaryotes prokaryotes kaiki na only one ori is there eukaryotic रे ओकाजाकी फ्रैगमेंट थोड़ा कंपेरेटिवली स्मॉलर हेबे केना बहुत जगह रे मल्टीपल साइट्स रे डीएनए रेप्लिकेशन होची देन eukaryotes क्लियर हेलो ठीक है। अच्छा DNA primer is removed by dash एठी हमें कहितले DNA primer is removed by
डैश DNA polymerase ना DNA primer is removed by DNA polymerase କି no with exonuclease activity ଅଛି ଯାହାର ହେଲା ସମସ୍ତେ ଲେଖି ସାରିଲ DNA sorry RNA primer is removed by DNA polymerase 1 ଯାହାର କି exonuclease activities ଅଛି DNA polymerase 1 लिखि दियो नले DNA polymerase 1 ଯାହାର କି exonuclease activities ଅଛି important question এটা ହେଲା ଆଗୁ ଯିବା and the repair and gap filling भी DNA polymerase 1 भी कर रहे ହେଲା clear हेलो आगु जाउची सरला क्लियर हेला समझते ଏବେ କୁହ ସମସ୍ତେ आंसर ଦବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction and that is dash 3 prime to 5 prime 5 prime to 3 prime 3 prime to 3 prime 5 prime to 5 prime ଗୋଟେ आंसर ଆସିଗଲା ଆଉ ଦରକାର yes Premjit this is Smita very good very fundamental questions done समझते कर लो very good in DNA continuous strand is lagging strand leading strand loading strand or both 1 and 3 तो समझते को yes leading strand very good आगु जाउची तो आमे वर्तमान कौन करिवा ना एबे मु तुमको बहुत गुडे प्रोब्लेम देवी हला देखिया के करि पड़छो आज केर फर्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1 मु दोची प्रोब्लेम गुडा ना लिखिबी मु गोटे गोटे प्रोब्लेम लिखिबी तमन ताको सॉल्व करिवो राइट डाउन ए डीएनए segment has 1000 base pair correct if A is 20% T will be dash Z will be dash C will be dash number of T number of G number of C केते होबो important question can you answer this किछि पिला आंसर देई सलेनी किंतु एठी कंसंट्रेट करो एठी गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अछि आ पछरे नुची के अछि टी केते हबो तमे कहछ अच्छा 20% जी केते हबो 30% सी केते हबो 30% मु केते एठी नंबर पचारछि सॉल्यूशन लिखो समस्ते सॉल्यूशन लिखो
जदि 1000 बेस पेयर अच्छी ताले केतेटा बेसेस 2000 बेसेस क्लियर है 1000 बेस पेयर अच्छी माने बेसेस केतेटा 2000 बेसेस एटा हला गोटे डीएनए एपटे 1000 अच्छी माने एपटे भी 1000 अच्छी 2000 बेस रो 20% केते हबो 400 हबो 400 ए 400 टी वेरी गुड 30% केते हबो 600 जी 600 सी वेरी गुड नाउ टेल मी टिके क्वेश्चन आउट के चेंज कर दवा जे तुम आंसर भलो देलो लिखो नंबर ऑफ लिखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ସେଇଥିରେ नंबर ऑफ हाइड्रोजन केते हबो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ହେଲା लिखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स in that DNA segment is dash. Can any of you tell me? Number of hydrogen bonds in that DNA segment is dash. Can any of you tell me? Hmm. बोलिए बोलिए देखो A एंड T के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड G एंड C के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमरो 400टा A अछि 400टा T अछि 600टा G अछि 600टा C अछि ताले can I say 400 into 2 and 600 into 3 कितना हुआ वेरी गुड राम जी यू आर वेरी ब्रिलियंट आपका नाम क्या है लिख के दो या यू टॉक राम जी योर नेम राइट डाउन योर नेम इन द ग्रुप इट विल बी ओ राजलक्ष्मी राजलक्ष्मी आई नो आई थिंक वी हैव इंटरेक्टेड बिफोर so it will be 2600 very good ସମସ୍ତଙ୍କ ନମସ୍କାର ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିଚର କହୁଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ବସିକି କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଏଇଟା ସବୁ ପିଲା ବୁଝିପାରିଲ ଜଟ ଡାଉନ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା ଆଗକୁ ଯିବା ଓକେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମକୁ ଦେବି ହେଲା ଆମେ ଆହୁରି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମକୁ ଦବା expected question number 2 a heavy DNA is taken गोटे heavy DNA ଆମେ ନେଲେ heavy DNA ମାନେ N15 N15 ଦିଟାଙ୍କ strand को कौन कहवा N15 N taken after 2 generations after 2 generations of replication in normal medium number of heavy DNA will be dash anybody can write no problem a heavy DNA is taken after 2 generation of replication in normal medium टा कौन
N14, number of heavy DNA will be dash. Anybody can chat, no problem. Solution, I mean लिखिवा. এটা interesting এয়া যে DNA replication is semi conservative. ହେଲା? DNA replication is semi conservative. Correct? ଆମେ ଆଉ ତାକୁ N15 ଆଉ ଦେଇ ପାରିଲେନି, ଖାଲି N14 ଦେଲେ, ତାହେଲେ ହେଭି ଆଉ ହେଇପାରିବନି, କଣ ହବ? ହାଇବ୍ରିଡ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ହେଇପାରିବ. ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ ହେଭି DNA ଆଫ୍ଟର 2 generation କେତେ କେତେ ହବ? କେତେ ହବ? 0 ହବ. ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟା କଣ ହବ? 0 ହବ କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, DNA replication is semi conservative. 0 ହବ କି ନାହିଁ? Yes, 0. ଏଟା ଭଲ क्वेश्चन ଗୋଟେ. अच्छा, जदि 0 ହେଲା ତାହେଲେ ହାଇବ୍ରିଡ କେତେଟା, ଲାଇଟ୍ କେତେଟା? ଆର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ गिफ्ट ଦେବି ଆଜି, ହେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ବି କରିଦେଇ ପାରିବ, ହେଲା. ଏଟା ଲିଭଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ବୁଝଉଛି ଏଟା କେମିତି. ନା ଆମର ଥିଲା ରେଡ୍ ମାନେ N15 N15, ଆମେ କୋଉଥିରେ ଗ୍ରୋ କଲେ? N14 ରେ. ଗୋଟେ ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟू ରହିବ, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ପରେ ଏୟା ହେଇଗଲା, ହେଲା. ତାହେଲେ ଏଟା ଥିଲା ହେଭି, କିନ୍ତୁ ଦିଟାଙ୍କ N15, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ N15 ଗୋଟେ N14 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା ହେଇଗଲା ହାଇବ୍ରିଡ, ଏଟା ହେଲା ହାଇବ୍ରିଡ, ହେଲା. ଫେର ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଆଙ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରେଇଲେ, ଆଙ୍କୁ ଫେର ଆମେ ଗ୍ରୋ କରେଇଲେ କୋଉଥିରେ? ନା N14 and N14 ନର୍ମାଲ ରେ. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ରେ ଗ୍ରୋ କଲେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଆର ସେଟା ସେମିତି ଅଛି, ଆର ବି ସେମିତି ଅଛି. ତାପରେ आर गोटे लाइट अच्छी, आर भी गोटे लाइट अच्छी, है नॉर्मल. बर्तमान न्यू टा कौन आसीबो ना N14 माने तो नॉर्मल ना, आर भी नॉर्मल आसिला, आर भी नॉर्मल आसिला, फिर आर भी नॉर्मल आसिला. तले आर नाटा कौन हबो? हाइब्रिड हबो. आर नाटा कौन हबो? हाइब्रिड हबो. किंतु एई जो दीटा, ए दीटा कौन हबो? नॉर्मल हबो कि नहीं? लाइट. नॉर्मल माने लाइट कहूची, लाइट एंड लाइट हबो. ताले इज देयर एनी, एटा ला फर्स्ट जनरेशन थिला, ए जनरेशन ना कर दिला फर्स्ट जनरेशन, ए जनरेशन ना कर दिला सेकंड जनरेशन. बर्तमान को हाइब्रिड गोटे, लाइट गोटे, लाइट गोटे, हाइब्रिड गोटे, ताले दीटा हला लाइट डीएनए, हला, दीटा हला हाइब्रिड डीएनए, 0 हला हेवी डीएनए, हला. तामने हमें खाली आंसर कौन देइथले? 0 हेवी. बर्तमान हमें कौन कहले? दीटा लाइट, दीटा हाइब्रिड. बुझेला जोटा में एबे बुझेले. बर्तमान क्वेश्चन टिके चेंज करिया. अच्छा, ए जो केतेटा स्ट्रैंड हो, केतेटा डीएनए ला? एठी दीटा डीएनए थिला प्रथमटा. एठी केतेटा हला? ना चारिटा डीएनए ला. केतेटा स्ट्रैंड हला? 8 स्ट्रैंड्स हला. एठी केतेटा स्ट्रैंड्स हला? 4 स्ट्रैंड्स हला फर्स्ट जनरेशन पर. सेकेंड जनरेशन पर चारिटा डीएनए 8टा स्ट्रैंड्स. एबे स्ट्रैंड्स ऊपर को प्रथम जनरेशन पर केतेटा स्ट्रैंड्स हमको मिलिला? गुड माने N15 केतेटा, N14 केतेटा? देखी को 1 2 1 2. N15 मिलला दीटा स्ट्रैंड्स, हला. N15 मिलला केते? दीटा स्ट्रैंड्स, हला. बुझ पाला कि नहीं समझते? N15 केतेटा मिलला? दीटा स्ट्रैंड्स मिलला. मिलला कि नहीं? बुझेला?
एंड N14 केतेटा दीटा बतन एटा काउंट कर एठी N15 केतेटा मिलला सेही N15 दीटा रोइबो ना आउ तो नॉर्मल मीडियम रे ग्रो करछन ना N14 केतेटा मिलला आउट ऑफ 8 6 ताले N15 बाय N14 स्ट्रैंड्स केतेटा हबो केते हबो 1/3 हबो तेणु आम परसेंटेज भी बाहर कर परिया हला बुझी पारल क्लियर हेलो आमे परसेंटेज भी बाहर करी परिबा क्लियर हेलो समझते ओके तो एटा गोटे प्रॉब्लम तो तयारी करके बतेइली जे हाउ वी कैन डू बेटर प्रॉब्लम हला बतन फेर आउ गोटे प्रॉब्लम दउची हमरो क्लास 10:30 रे सरीबो केना द क्लास वाज कंटीन्यूअस केना पिला माने जेतु इंटरेस्टेड अछंती बा एटारे थरे ब्रेक करले सेकंड क्लास रो पिला कमी जाउचंती क्लास विल बी कंटीन्यूअस हला 10:30 रे इट विल बी ओवर हला आर यू इंटरेस्टेड फॉर मोर प्रॉब्लम और नॉट क्वेश्चंस नल करिया हला प्रॉब्लम जदी करिवा ने क्वेश्चंस भी कर परिया अच्छा मते को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिनियर ना सर्कुलर के भी कथा हो हला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिनियर ना सर्कुलर बालकृष्ण यस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सर्कुलर वेरी गुड सर्कुलर कि नो सर्कुलर बताना था नेक्स्ट पार्ट का सर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सर्कुलर क्लियर है समझते नेक्स्ट पार्ट का सर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीसी रिच ना 80 रिच के कहि परिबो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज जीसी रिच एटा टिके प्रोकैरियोटिक गुडा जीसी रिच हला जी एंड सी रहले से माने स्टबन सन चेंज होंतनी हला आज पर्यंत एक्टिव बैक्टीरिया सेंती रहिची हला तन से माने जीसी रिच गोटे हला सेकंड तांकर ओरी गोटाई थिबो तांकर हिस्टोन थाए ना न थाए नो हिस्टोन तार हिस्टोन थिबो कि नो हिस्टोन हला तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीसी रिच नाउ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमर मैटरनल इनहेरिटेंस केना हम जतले गैमेट बने मेल तार न्यूक्लियस खाली दिए एटी फीमेल न्यूक्लियस अछि किंतु माइटोकॉन्ड्रिया टा कहार माइटोकॉन्ड्रिया गुडा मदर रो कि नो मदर रो एडा फादर रो तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पई रेस्पोंसिबल एंड आउ कोन कहि परिबा मैटरनल इनहेरिटेंस पई भी रेस्पोंसिबल हला गोटे लाइन मु बतेली तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऊपर टिके हमकु रिसर्च करिया को पड़िबो हला एबे हमें जिबा नेक्स्ट पार्ट को दैट इज ना एबे हमें जिबा नेक्स्ट पार्ट को एडा सब पढैतिले हमें मन पड़ची माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए न सब पढाइतिला त एबे मटा को लिखै दोची लिखै देले आई स्टार्ट एबे आसो आ गोटे क्वेश्चन गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 4 लिख आ गोटे a DNA with P32 isotopes was replicated for how many generations? 3 generations in normal and এটা radioactive P32 টা কোন radioactive medium respectively তাহলে আমরা DNA গুড়াକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଏଟା ଆଗ ଲେଖ
ए डीएनए रे कौन थिला p32 आइसोटोप्स थिला was replicated for 3 generations in normal medium, फिर normal medium, फिर radioactive medium respectively. ताले तम आंसर दियो number of radioactive DNA is dash and number of radioactive DNA strands is dash. टिके कष्ट क्वेश्चन हे पारे किंतु मु तुमको एटी ट्रिक्स गोटे बतै देबी हला आगो क्वेश्चन लिखि दियो गोटे डीएनए अछि एटा हमें N15 यूज करूने एठी हमें कोन यूज करछे P32 जदि गोटे डीएनए रो पार्टली रेडियो एक्टिव हे जिवो ताले डीएनए टा रेडियो एक्टिव होबो कि नहीं पार्टली हो कि फुल्ली हो द डीएनए विल बी रेडियो एक्टिव हला ताले एठी गोटे ट्रिक्स अछि जे हम लास्ट टा कोन नैथिले रेडियो एक्टिव P32 मीडियम रे हमें ग्रो करैथिले लास्ट टा तेणु सेमिकंजर्वेटिव रूल अनुसार सबुतक डीएनए पार्टली बा फुल्ली रेडियो एक्टिव हे जिवे तेणु टू द पावर 3 8टा डीएनए हेले भी सबुतक डीएनए 8टा केने केतेटा जनरेशन हमें कंप्लीट करिचे तीनटा तले गोटे जनरेशन पर दीटा दीटा जनरेशन पर चारिटा तीनटा जनरेशन पर 8टा ताहले 8टा जांक डीएनए रेडियो एक्टिव हेबे कि नहीं हेबे वर्तमान कष्ट क्वेश्चन बाकी रही गला डीएनए स्ट्रैंड्स केतेटा रेडियो एक्टिव आ पई गोटे फार्मूला में तयारी करबा हला कहना 16टा स्ट्रैंड्स ना अछि किंतु ता भीतर केतेटा रेडियो एक्टिव ता माने हमको पूरा फेर करिया पड़ियो बुझ परछो शुड आई गिव यू द क्लू केमती करबा गोटे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को केमती सॉल्व करबा 10टा जनरेशन हेले भी हमें करि परिबा बुझ परछो कि नहीं प्लान नहीं ताले सेत पई मु गोटे वे बतौछि तुमको केमिति ना लिबोजी बतौछि केमति एटा आमे कोन करिबा ना प्रथमे आमे डीएनए को नबा गोटे बॉक्स करिया एंते गोटे बॉक्स करियो प्लान ना एठी आउ देखिबा दरकार नहीं प्रथम डा नबा पेरेंटल जनरेशन पी तापर नबा फर्स्ट जनरेशन तापर नबा सेकंड जनरेशन तापर नबा थर्ड जनरेशन क्लियर हेला पेरेंटल जनरेशन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन तापर हमें एठी एंटी डिवाइड कर दवा एठी हमें लिखिबा नॉर्मल एठी कोन लिखिबा नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रैंड्स एठी हमें लिखिबा रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड्स एठी लिखिबा हमें टोटल स्ट्रैंड्स एटार मानेला स्ट्रैंड्स हला आ एपटटा हला डीएनए एउडा कोन एउडा हला डीएनए नंबर ऑफ डीएनए अच्छा पेरेंटल में कौन नहीं थिले को पेरेंटल में कौन नहीं थिले गोटे डीएनए स्ट्रैंड्स केतेटा हो दीटा फर्स्ट जनरेशन पर केतेटा डीएनए हे गला दीटा स्ट्रैंड्स केतेटा हो चारिटा सेकंड जनरेशन पर डीएनए केतेटा हे गला चारिटा स्ट्रैंड्स केतेटा हो आठटा थर्ड जनरेशन पर डीएनए केतेटा हे गला एटा डीएनए एटा हला नंबर ऑफ डीएनए एटा हला स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एपटा ए जो एउडा करिचे जोडा 8टा डीएनए ले केतेटा स्ट्रैंड्स 16टा 16 क्लियर लई जाए बर्तमान मते कह पेरेंटल स्ट्रैंड जत निया जाए सेते बेले सेटा रेडियो एक्टिव बेली कहैतिला हला तले पेरेंटल स्ट्रैंड लेख आर माने रेडियो एक्टिव हला फर्स्ट जनरेशन कोन निया हैतिला नॉर्मल मीडियम सेकंड जनरेशन कोन निया हैतिला नॉर्मल मीडियम थर्ड जनरेशन कोन निया हैतिला रेडियो एक्टिव क्लियर हिलो आगे उडा लिख दबो क्वेश्चन हम बाहर कली उडा पेरेंटल कोन निया हैतिला रेडियो एक्टिव फर्स्ट जनरेशन कोन निया हैतिला नॉर्मल एन माने नॉर्मल सेकंड जनरेशन कोन निया हला
R माने रेडियो एक्टिव बनाओ एमती एंड N माने कौन नॉर्मल एठी 10टा जनरेशन हेले भी करि परिबो डोंट वरी ए ट्रिक्स टा बतौछि परा तुमको बुझि पल्ला पिलाने एबे आस जदि पेरेंटल जनरेशन दीटांक रेडियो एक्टिव गोटे डीएनए नियाइतिला दीटा स्ट्रैंड नियाइतिला टोटल रेडियो एक्टिव ताले रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड केतेटा दीटा नॉर्मल स्ट्रैंड केतेटा 0 केना 2 - 2 0 क्लियर हेलो कि नहीं जदि टोटल स्ट्रैंड दीटा दीटांक रेडियो एक्टिव नॉर्मल केतेटा 0 केना हमें डीएनए टा पेरेंटल नेइथिले पूरा रेडियो एक्टिव ई माने एठी कोन पेरेंटल डीएनए क्लियर हेलो यस लेख जणे के सेई क्वेश्चन ना आ गोटे फॉर्म रे करूची जापड़े कि तमे बेटर बुझी परिबो एडा एई सेट हला नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स एई सेट नंबर ऑफ डीएनए हला क्लियर हेलो जणे के यस लेख पेरेंट कोन नि आइतिला क्वेश्चन ने पेरेंट कोन नि आइतिला क्वेश्चन ने रेडियो एक्टिव नि आइतिला तो जणे के यस लेख एई जेन लिख बुझी परलो बॉक्स ताको बनाओ पेरेंटल ले केतेटा डीएनए गोटाए आफ्टर वन जनरेशन फर्स्ट जनरेशन पर केतेटा डीएनए दीटा आफ्टर सेकेंड जनरेशन केतेटा डीएनए तीनटा आफ्टर थर्ड जनरेशन केतेटा डीएनए चारिटा एटा हला नंबर ऑफ जनरेशन हला क्लियर हेले जे ह मारु ना ना उथरे बुझेबी हमरो क्वेश्चन रे पेरेंट कोन नि आइतिला रेडियो एक्टिव दीटा अंक रेडियो एक्टिव क्लियर हेला दीटा अंक स्ट्रैंड्स रेडियो एक्टिव निया जाए रामजी बुझेला एई जे बुझेला सरीनी एई जे बुझेला तो ओके वेरी गुड एबे आसन नेक्स्ट पार्ट को बर्तमान फर्स्ट जनरेशन नॉर्मल निया हिची ताले रेडियो एक्टिव फिक्स रहइबो ताले रेडियो एक्टिव सीधा टाणी की तळगु नै जीवो 4 - 2 नॉर्मल डीएनए 4 - 2 दीटा नॉर्मल हैला सेकंड जनरेशन ने भी नॉर्मल निया हिची ताले रेडियो एक्टिव कांस्टेंट रहइबो फेर दीटा आउ अधिका ही परिबोनी 8 - 2 6 नॉर्मल थर्ड जनरेशन ने नॉर्मल निया हिची ना रेडियो एक्टिव निया हिची रेडियो एक्टिव निया हिची हैला जदि निया हिची ताले नॉर्मल कांस्टेंट रहइबो 6 रेडियो एक्टिव केतेटा ही जीवो 16 - 6 10 ताले हमर आंसर केते 10 बुझी पालो विदाउट मेकिंग एनी डायग्राम you can make it or not जदि मीडियम रेडियोएक्टिव अच्छी नॉर्मल इज फिक्स्ड ओके वेरी गुड राजलक्ष्मी वेरी गुड एंड एनी अदर आम नहीं कौन नॉर्मल रेडियोएक्टिव नेले नॉर्मल 0 प्रथमटा एई भलिया 10 जनरेशन आल्सो यू कैन डू समस्त बुझ पालो एई भलिया 10टा जनरेशन जाय भी तुम माने करि परिबो विदाउट एनी डायग्राम हला जदियो आमे कहितले सबुतक डीएनए रेडियो एक्टिव हबो बट स्ट्रैंड केमिति कैलकुलेशन करूचे ना जदि नॉर्मल लेखा हेची ताले आमे रेडियो एक्टिव को फिक्स करले जदि नॉर्मल लेखा हेची ताले आमे रेडियो एक्टिव को आ बढ़ाई परिबा नाही तेनु माइनस खाली कर दबो जता रेडियो एक्टिव लेलो सेता नॉर्मल को फिक्स करलो माइनस कर दिला 10 10 इज द आंसर हला अप टू दिस आज हमरो क्लास थिला हला जदि कार किछि डाउट्स अछि किछि भी प्रॉब्लम अछि किछि भी आइडियाज अछि मु आज पढेली डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन सेंट्रल डोग्मा डीएनए एंड आरएनए डिफरेंस आरएनए वर्ल्ड ए विषय रे कहली हला एवं डीएनए रेप्लिकेशन रे एटलीस्ट हमें आरएनए विषय रे एति कहितली जे आरएनए बेसिक क्लोज टू प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एवं आरएनए
बहुत important କାହିଁକିନା ସେଟା structural ସେଟା catalytic ହେଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ messenger ସେଟା ମଧ୍ୟ adapter ସେଟା ମଧ୍ୟ enzymes ribo enzymes ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲେ peptide bond ସେ ବନାଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରେ ଆମେ କହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡୋଗ୍ମା DNA ରୁ RNA ରୁ ପ୍ରୋଟିନ ହୁଏ ଏଟା ୟୁନିଡିରେକ୍ସନାଲ ଫ୍ଲୋ ଏଟାକୁ କ୍ରିକ୍ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ there is a concept of reverse central dogma ଯୋଉଠିକି RNA ରୁ DNA ବନେ ତାହେଲେ କୋଉ ଏନଜାଇମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବନିବ ନା RNA dependent DNA polymerase ଦ୍ୱାରା ବନିବ କିନ୍ତୁ DNA ରୁ ଯୋଉ DNA ବନେ ସେଟା DNA dependent DNA polymerase ଦ୍ୱାରା ବନେ ତେଣୁ ତା ନା ଖାଲି DNA polymerase ଲେଖାଯିବ ଯୋଉଟା କି ତାର ଅଟୋ catalytic property ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ DNA replication eukaryotic ରେ certain stage ରେ ହୁଏ ଯାହା ନା S phase ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆମେ କହିଥିଲେ the DNA replication in one strand is continuous in other strand is discontinuous semi discontinuous ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆମେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ what are the requirements and what are the enzymes and certain problems related to this ବୁଝିଲା clear ହେଲା certain problems related to this and the highest problem the last problem is the best problem କାହିଁକି ନା ଆ ଦ୍ୱାରା not only we can calculate the DNA we can calculate the strands and whether they are radioactive or whether they are normal also we can say okay so now ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆମେ eagerly wait କରିବା ଆଜିକା କ୍ଲାସ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି I hope all of you can understand this okay bye bye thank you okay thank you all